and welcome to Day and Night News Prime Debate. AIDS. The very mention of it brings fear to our minds. Throughout the world, AIDS has claimed many lives and continues to do so. But talking about it still remains a taboo, especially in this part of the world. This because it has certain cultural and social aspects that attract a lot of stigma. On World AIDS Day today, we try to find out how to fight the disease as well as the stigma attached to it. Well, it is estimated that more than 3.3 crore people worldwide are living with HIV. India has one of the highest infection rates in the world, but the country is still unprepared to talk about it. If there is anything that can be more devastating to a person who has just discovered his HIV positive status, it is the stigma associated with the disease. Unfortunately, for many hale and hearty Indians, the word AIDS does not mean acquired immunodeficiency syndrome. It means an allegation, rejection, sideways glances and hushed gossip. So hundreds of HIV positive people strive to hide the reality even from those closest to them, when they should have been trying to reclaim their lives. But for them, nothing can be more painful than the trauma of ostracism. Not even death. Anything can happen to you if you're HIV positive. You can get thrown out of home or office. If God forbid a child contracts the dreaded disease, he would lose out on schooling and even friends. It's a disease which ends life in more ways than one. But does it have to turn us into killers too? Because whenever we refuse to talk to or touch an HIV positive person, that is what we are doing, pushing him closer to the end, moment by painful moment. Well, to discuss the issue, we have in our studios Sandeep Mittal, Deputy Director of Targeted Intervention, Mehak Uppal, a Master Trainer of HIV/AIDS Counsellors, Dr. Kavita Chavan, Deputy Director, State AIDS Control Society, Avnish Jolly, lawyer cum activist, and Pooja Thakur, an HIV patient who has been brave enough to come to our studios and talk about the ordeal of being a patient of this virus. Well, thank you all for being with us here today. Well, Sandeep, if I may begin with you. You know, there was this report, एक report आई थी from Geneva. I mean, it's a UN report and it was tabled in Geneva. वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि पिछले 10 सालों में 50% of HIV/AIDS has come down in India. So do you think, is there any validity to this report? Yeah, this definitely the number of HIV positive in India has reduced a lot. So as this report clearly says, 50% reduction is reported. So some statistical measures have been taken, some stats model have been used, which actually say that the HIV in India is stable in many parts and it is coming down. So new infection has reduced. So in a recent report, it is clearly said that new infection in India in last 1 year has reduced by 50%. Okay. So there is a lot of achievement in this field. So number of HIV is coming down in India. So definitely this is. I mean, it's very comforting to know that yes, the numbers are coming down. But Avnish here had a different view on that. Do you believe that these figures actually were true or they conflicting figures? जब हमने HIV/AIDS के फील्ड में काम करना शुरू किया लेट 90s में, अर्ली 90s में, तो HIV एक बहुत बड़ा हुआ था और उसके साथ साथ जब स्टेट के साथ मिलकर काम किया तो फिगर्स का कंट्रोल होना अच्छा लगता है, लेकिन जो लोगों का दुख है उसको देखकर और भी दुख होता है कि हम इतने सालों में जो केयर और सपोर्ट मिलना चाहिए HIV के साथ जी रहे लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है। ये फिगर्स तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम कैलकुलेट करेंगे कि ये एपिडेमिक फैल गया, इतने लोगों को हुआ, इतने मर गए, इतने नए पैदा हुए या इतनी नई इन्फेक्शंस हुई। हम वहां कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। हम इन्वॉल्व है एडवोकेसी में, अवेयरनेस में और उनके राइट्स के ऊपर। और वो जो राइट्स हैं जो एक आम इंसान को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। और जो अभी रिसेंटली यूएन का रिपोर्ट आया कि साउथ एशिया में केयर एंड सपोर्ट का जो सारा सिस्टम है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। Right. Mehak, you know, एक तो yes figures which show कि हाँ जी थोड़ा सा India is doing well, थोड़ा कम आ रहा है, but more than the figures, like Avnish is saying, care or support क्योंकि अगर हम बात करें तो आम लोगों में, इवन लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट HIV पॉजिटिव पीपल, इफ वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल
पॉपुलेशन देयर, उनके जो बेसिक मिथ्स हैं क्या वो बस्ट हो गए हैं अभी तक? क्या उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी उनके पास है? इफ वी गो टू द स्ट्रीट, कितने लोगों को पता होगा कि एचआईवी और एड्स में क्या डिफरेंस है? हाँ या जी। एचआईवी पॉजिटिव होने का बेसिक मतलब क्या है? क्या आपकी जिंदगी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन आप एचआईवी पॉजिटिव हो गए? क्या ऐसी कोई थॉट प्रोसेस है कि नहीं है? ये बेसिक, फॉर एग्जांपल एचआईवी का टेस्ट करवाना है, कहाँ से टेस्ट करवाया जा सकता है? क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? क्या ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी है लोगों के पास? आई रियली वंडर. Which is true. Dr. Kavita, you know, yes, the awareness between HIV and AIDS, if you could just very quickly tell our viewers, what would you say is the difference between HIV virus and AIDS? HIV is basically a virus. This is the virus, if in Hindi I want to say it's a कीटाणु जो disease को spread कर रहा है. When it enters the human body, it spreads, make its colonies, and ultimately when our whole immune system is collapsed, then person goes into stage of AIDS. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome is a group of diseases when so many opportunistic infection which are roaming in the surrounding environment, they attack that person because of that breakdown of immune system. Right. That is the stage of AIDS. And AIDS, आराम से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, और it's a huge social taboo. Not nowadays it's not huge social taboo because we know daily, we read in the paper, we see the patient in the hospital. Now patients are not afraid of talking about, it's not in the medicos, paramedicos, they are not afraid of these patients. So they will get contacted with the disease if they touch the patient. Even a common person, we go to the field, we work in the colonies, in the slums area. I am not talking about the elite society. There the people know, okay, AIDS हो गया है, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, इसको आप हॉस्पिटल में लीजिए, वहाँ दवा कराइए. And the another thing, care support. I want to take that question of Mr. Jolly. He said कि care support अभी नहीं है. More than 600 ART center इंडिया में है, and equal number अभी pipeline है जो अभी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा लोगों को. अगर वो ART सेंटर, जो एक ART सेंटर है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे हैव 2 or 3 ART सेंटर. यू कैन सी इन हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव, और उतने सेंटर वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड इक्वल नंबर ऑफ कम्युनिटी केयर सेंटर्स. दीज कम्युनिटी केयर सेंटर्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू people living with HIV AIDS. I'm not saying these AIDS patient infected with HIV virus also, because there is a gap between infection with HIV and ultimate stage of AIDS. This gap may be of 1 year, maybe of 10 years. जो इस गैप के बीच में भी जो लोग जी रहे हैं, उनके लिए भी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नैको ने प्लान किए हैं, और डेफिनेटली वो पहुंच रही हैं ग्रास रूट लेवल तक. 100% आई कांट से कि 100% पहुंच रही हैं, बट पहुंचने का लाइव एग्जांपल आपके सामने पूजा ठाकुर है. मैडम, क्लिनिक्स खोल देने से सर्विस प्रोवाइड नहीं होती. रिसेंटली हिमाचल में एक वुमेन को फॉल्स HIV पॉजिटिव डायग्नोज कर दिया गया और उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा. जिस स्टिग्मा से वो होकर गुजरी, क्या उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? डेफिनेटली वो बहुत ही गलत चीज जो भी हुआ. तो फिर वो जो केयर एंड सपोर्ट है वो मामले में क्या है? मिस्टर जॉली, सिर्फ एक केस को लेकर हम पूरे सिस्टम को फेल नहीं. कितने केस आगे आते हैं? कितने लोग हैं जो उनकी एडवोकेसी करते हैं? आई एग्री विद यू. एक नहीं हो सकते, 10 केसेस आते हैं. लेकिन आप ये देखिए, जो 1000 लोग ठीक हो रहे हैं, जो इनका फायदा उठा रहे हैं, आप उनकी तरफ भी देखिए ना. लैक्स ऑफ पीपल आर गेटिंग बेनिफिट. और सर्विसेज के साथ इट्स आल्सो द एटीट्यूड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर व्हिच इज इंपॉर्टेंट. सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं और वो सारी सर्विसेज दे रहे हैं. इट्स द एटीट्यूड दैट मैटर्स. क्या वो एम्पैथेटिक हैं? क्या वो एक्चुअली पेशेंट से बेसिक काउंसलिंग स्किल्स उनके हैं कि वो पेशेंट को कंफर्टेबल बना सके? आफ्टर ऑल कोई इंसान अगर HIV टेस्ट आज भी करवाने जाता है तो उसके मन में थोड़ा सा वहम होता है. उसको इट्स नॉट दैट इजी, यू जस्ट डोंट वॉक इन एंड गेट अ टेस्ट डन. आज भी आम लोग को थोड़ी सी इश्यूज होंगे. तो क्या वो सर्विस केयर प्रोवाइडर वो कंफर्ट लेवल दे पा रहा है? I think that is a very valid point. I want to just say here that, like Mahak said, ki whether the people are receptive to these things. But that's why we are working on counseling services. Counselors are provided, not at the government hospital, periphery also. Even where our NGOs are working, counseling services are there. Because we know doctors are busy in their work. They have to do so many things. Along with them, we are providing counselors, and especially agencies are there to train those counselors so that they provide the proper services. All right. Are already been trained. Yeah, you know, but before we proceed, भी था, आपने 2007 में सुना होगा कि PGI के काउंसलर जो जिस पे चार्जेस लगे हैं कि उसने अब्यूज किया किसी HIV पॉजिटिव का, आज भी वो दोनों जेल में हैं, टेक्नीशियन और वो भी तो सिस्टम से निकल के आए. I think तो उस तरह की अगर चीजें हो रही हैं तो एक आम इंसान अस्पताल जाता हुआ डरेगा. वो एक आई थिंक मेडिकल लीगल केस है. आई थिंक उसकी आपके पेरेंट्स से निकल के आया ना वो. देखो,
क्योंकि हमारा विश्वास क्या है कि अस्पताल चले जाओ, आपको वहां ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब वहां उसका अब्यूज हो रहा है पेशेंट का, जो टेक्नीशियन है, काउंसलर है, कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम उस फेथ को कहीं खो देंगे, और जो हमारे साथ HIV पॉजिटिव भाई बहन जी रहे हैं, उनका विश्वास सिस्टम से उठ जाएगा। Okay, Avnish has a very valid point, because I think there is a stigma attached to it. People still are wary to go to doctors and get themselves tested. He is there. We have got Pooja right here. Let's ask Pooja. Pooja, आप हमें बताइए कि पहले आपको ये HIV वायरस हुआ कैसे? ये 2005 में मुझे पता लगा था, और मैं ये नहीं कह सकती कि ये कैसे हुआ था। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड थे वो ट्रक ड्राइवर थे, उनको ये वायरस कैसे आया ये मुझे पता नहीं है। और जो 2005 में जब पहले मेरे बेटा वहाँ PGI में एडमिट था, और उसका भी जब पॉजिटिव आया, डॉक्टर ने उसका टेस्ट कराया, बार बार इन्फेक्शन हो रहा था, बच्चे को पता नहीं लग रहा था कि क्या रीज़न है, बच्चा क्यों बार बार बीमार हो रहा था। डॉक्टर ने खुद ही HIV का टेस्ट कराया। 3 टेस्ट लगाने के बाद जब बच्चा पॉजिटिव आया, तो फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि बच्चा का HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है, अब आप लोगों का भी करवाना है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ का करवाया, हम दोनों का भी HIV पॉजिटिव आया, और जो मेरा बड़ा बेटा है वो नेगेटिव आया। तो उस समय जो सिचुएशन थी वो बहुत ही, मतलब मैं उसको शायद बयान भी नहीं सही से कर पाऊंगी, क्योंकि जब टेस्ट तो हो गया था, काउंसलिंग भी की गई थी, और चलिए जैसी भी काउंसलिंग थी अच्छी थी। मैंने जो बातें सीखी तो थोड़ा सा लगा कि नहीं, जीने के भी स्कोप है। अदरवाइज जैसे HIV को हम सुनते, HIV एक बहुत खतरनाक भयानक रोग है, ऐसे पहले स्लोगन थे, तो ये सब सुना था, तो मुझे लगा था कि एड्स हो गया है, तो लाइफ टोटली खत्म हो गई है। तो काउंसलिंग हुई तो थोड़ा सा लगा कि ठीक है, हम जी सकते हैं लाइफ को। लेकिन वहाँ काउंसलिंग से निकल के जब हम अपना मेन ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़े, PGI में गए ट्रीटमेंट के थ्रू, तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो वहाँ पे जब हमारे टेस्ट किए गए, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए जब हम गए, तो रोज आना जाना होता था, सुबह 6 बजे जाओ और टेस्ट के लिए लाइन में लगो, लैब टेक्नीशियन। तो वहाँ जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ लाइन में लगे हैं, साथ में कार्ड बना है, तो भी लैब टेक्नीशियन ये सवाल पूछता था कि कहाँ गई थी, तो तेरा कोई बॉयफ्रेंड था, तेरा कोई बाहर अफेयर चल रहा है। और साथ में ही वही सेम सवाल मेरे हस्बैंड से भी पूछे जाते थे कि फ्रॉम द डॉक्टर्स, नहीं लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियंस, बिल्कुल। तो ये सारा रोज का, मतलब 2-3 महीने हम लोग वहाँ कंटिन्यू टेस्ट के लिए, तो मेरे लास्टली मेरे हस्बैंड ने टेस्ट के लिए करवाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे PGI नहीं जाना है, रोज के ये सवाल, मतलब चलो जैसे भी है HIV जैसे भी आया, मेरी वजह से तुम्हें भी ये सारा सुनना पड़ता है, और साथ में मैं भी सुन रहा हूँ। उन्होंने टेस्ट के लिए मना कर दिया, और अक्टूबर 2005 में ही उनकी डेथ हो गई।